Good morning, dear students, and I welcome you in the online class of Information Technology. As you know that we have already covered two sessions. These are methods of communication and communication cycle. This is fourth session I am discussing today, and I want you to understand it seriously. Third session I will give you some other day, because I think that this chapter is required to know first before going through the third session. This is effective communication. As I told you that we have already done methods of communication and communication cycle. Now this is effective communication, and these are we are doing under employability skills. So communication is required to be successful. Effective communication is required to be successful as a student and as an employee in future. So when you will open the book, or if you have not purchased the book, class 10 students, please purchase it, because you have to go through your CBSE exams this year. This is session 4, effective communication. In the start of the chapter, examples of the topmost people like Mahatma Gandhi. These are well-known person of the world. Mahatma Gandhi, Mr. Nelson Mandela, and Mr. Narendra Modi, Prime Minister of India. Malala Yousafzai, she was a citizen of Pakistan. She is a citizen of Pakistan, and other people, this message is given to you that these people have got their success in their life because of their effective communication skills. And what are the communication skills? This is the way of transferring the information from one person to another. So the chapter's topic is showing that we will be discussing this effective communication, how to generate effective communication. One example, a very nice story is given over here, that what is effective communication skill. One story is given. Let us see an example of effective communication. I am reading a story for you people, and I want you to hear it and understand it. A king once dreamt that his teeth had fallen off. एक बार एक किंग को सपना आया कि उसके जो दांत हैं वो गिर रहे हैं, दांत उसके गिर रहे हैं, उसे सपना आया। और जब वो सुबह उठा तो उसने अपने जो प्रीस्ट था, जो उनका जो पुजारी था या प्रीस्ट था, उनका जो दरबारी थे, उनको बोला कि मुझे ऐसा सपना आया कि मेरे दांत गिर रहे हैं। तो उस प्रीस्ट ने उसे कहा कि ऐसा है कि इसका ये मतलब है कि आप अपने प्रियजनों को एक के बाद एक मरते हुए देखेंगे। अब ये बात सुनकर किंग को गुस्सा आ गया। उसने एकदम से उस प्रीस्ट को कहा कि इतनी बुरी बात बोलते हो, यहाँ से चले जाओ, और उन्होंने देश निकाला दे दिया। किंग banished the priest from the city and asked his advisor to the same question. अब वही क्वेश्चन जो प्रीस्ट से पूछा था, वही क्वेश्चन उन्होंने अपने एक और सलाहकार से पूछा। और वो सलाहकार क्या जवाब देता है कि सर, इस सपने का मतलब ये है कि आपकी उम्र बहुत लंबी होने वाली है और आप अपने सभी दूसरे रिश्तेदारों से बहुत ज़्यादा जिएंगे। ये सुनकर किंग बहुत खुश हुआ और उसने उस एडवाइज़र को इनाम दिया। कहता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अब आप समझेंगे कि बातें दोनों एक जैसी थी, लेकिन उनको बताने का जो तरीका था, जो कम्युनिकेशन स्किल था, वो कहीं पर वो प्रीस्ट में कम था और एडवाइज़र जो था वो इसमें थोड़ा माहिर था, थोड़ा क्लेवर था, यानी कि वो स्किल्ड पर्सन था। उसने उसी बात को दूसरे तरीके से कहा। एक ने कहा कि आपके सभी रिश्तेदार आपके आंखों के सामने मर जाएंगे सभी, और आप अकेले रह जाएंगे। दूसरे ने कहा कि आपकी उम्र इतनी लंबी होगी कि आप सबसे ज़्यादा जिएंगे। बातें दोनों एक ही जैसी थी, लेकिन एक के कम्युनिकेशन स्किल ने उसको इनाम दिलवा दिया और दूसरे पर्सन के कम्युनिकेशन स्किल ने उसको देश निकाला दिलवा दिया।
तो ये डिफरेंस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स में। अब हम समझते हैं कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारे लाइफ में गोल क्या होते हैं? हम सभी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एज अ एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय, एज अ स्टूडेंट और एज अ पर्सन इन दिस फील्ड। जैसे हम सोसाइटी में किसी से बात करते हैं तो हम सभी चाहते हैं दैट वी शुड बी फेमस पर्सन। और हम वो कैसे कर सकते हैं? अगर हमारा बात करने का तरीका ठीक है, हमारे अंदर वो क्वालिटी है कम्युनिकेशन की कि हम दूसरे को इम्प्रेस कर सके। तो जो आपकी बुक में दिया हुआ है, व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू द बुक, प्लीज परचेज द बुक, क्लास 10 स्टूडेंट्स, प्लीज परचेज दिस बुक as soon as possible. Otherwise also in this time I will be sending you the pics of the pages of this session. Number one, this goals. What are the goals? Establishing trust and understanding, changing behavior and acquiring information. तो हमारे goals क्या हैं? Goals हैं कि हम कैसे दूसरों का विश्वास जीतें, कैसे दूसरों को अच्छे लगें और कैसे इस अपने एज अ स्टूडेंट इन योर लाइफ कैसे हम इंफॉर्मेशन अच्छे से लें और कैसे फीडबैक अच्छे से दें। तो ये हमारा मेन गोल है व्हेन यू विल बी गोइंग थ्रू इट। अब इसमें जो हर्डल्स आते हैं वो क्या हैं, और इसमें आप देखेंगे एनीथिंग दैट इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन। जो इंटरफेरेंस आती है इस कम्युनिकेशन स्किल्स में मेक्स इनइफेक्टिव, जो इसको इनइफेक्टिव बनाती है हमारे कम्युनिकेशन स्किल को, हम सीधी सी भाषा में उसे शोर कहते हैं, उसे नॉइस कहते हैं कि वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन इन्फ्लुएंस आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज एंड अफेक्ट द रिलेशन विद अदर्स। मीन्स हमारा इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो हमारे इन्फ्लुएंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज को, कि हमारे मैसेज कैसे समझा जाएगा, और इससे हमारे जो रिलेशन है लोगों के साथ अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं, या उल्टा भी हो सकता है, वो बुरे भी हो सकते हैं। अब इसमें फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? फैक्टर्स क्या हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को अच्छा बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं? सबसे पहले उसमें आता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या है कि व्हेन वी आर टेलिंग समथिंग, जब हम बात कर रहे हैं किसी से, हमारा कंटेंट कैसा है? दिस रेफर टू द लैंग्वेज हैज बीन यूज्ड। हम लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हैं, इसीलिए कई बार हमें कहा जाता है कि वो पोलाइट लैंग्वेज यूज करें, अच्छी लैंग्वेज यूज करें, अब्यूजिव लैंग्वेज स्पेशली यूज ना करें। वी ऑल इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स डिफरेंटली। कई बार जब शब्द बोले जाते हैं तो एक पर्सन उसी वर्ड को किसी और तरीके से समझता है और दूसरा पर्सन उस वर्ड को किसी और तरीके से समझता है। तो जो कंटेंट है जो हम यूज करने वाले हैं, विषय वस्तु या कंटेंट ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, दैट शुड बी क्लियर। उसके बाद प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस? यानी कि वो बात जो कम्युनिकेशन है वो किया कैसे जा रहा है। अगर एक स्टडी को समझें तो उस स्टडी में ये कहा जाता है कि जो हमारा 7% इंटरप्रिटेशन है हमारे बोलने का, जो हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑफ स्पोकन कम्युनिकेशन जो हमारा है वो वर्ड से आता है। यानी कि जो हम शब्द यूज कर रहे हैं, सिर्फ 7% जो होता है वो हमारे वर्ड्स के थ्रू आगे पास ऑन होता है, जबकि 55% कम्स फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज। यानी कि 55% जो हमारा है वो बॉडी लैंग्वेज से शो ऑफ होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं और हमारा बोलने का तरीका या उसका मतलब क्या है। तो इससे आप समझें कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। एंड 38% कम्स फ्रॉम इंटोनेशन, जैसे कि हमारी बातचीत का उतार चढ़ाव कैसा है, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, उससे हमारा लहजा समझ में आता है। तो ये हमारे प्रोसेस के अंदर आता है कि हम अपनी बात को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। यानी कि हमारे वर्ड्स कैसे हैं, हमारा बात करने की लैंग्वेज या तरीका कैसा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और हमारा बातचीत करने का उतार चढ़ाव यानी कि कर्व कैसे हैं हमारी बातचीत में, कि कब हम स्लो डाउन करते हैं या कब। इसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है दैट इज कंटेक्स्ट। कंटेक्स्ट मीन्स किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, एनवायरनमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हॉस्पिटल में बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट होता है। जब हम मंदिर में बात कर रहे हैं
तो अलग तरीके का एनवायरनमेंट होगा। जब हम क्लासरूम में बात कर रहे हैं तो अलग तरीके का एनवायरनमेंट होगा। तो इन तरीकों को अगर हम कंटेक्स्ट में लें कि ये हमारे जो बातचीत करने का तरीका, और इसके बाद जो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम किस एज ग्रुप से बात कर रहे हैं। अगर हम अपने सेम एज ग्रुप से बात कर रहे हैं तो वो भी एक कंटेक्स्ट का पार्ट बन जाता है कि कंटेक्स्ट क्या है, कि उसका एनवायरनमेंट क्या है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, और जब हम कम्युनिकेट करें तो इसको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देन कम्स द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's यानी सी अल्फ़ाबेट कैरेक्टर से, अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले कुछ शब्द हैं जो हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को सपोर्ट करते हैं, जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव भी होगा, वो हर तरीके से बेहतर होगा, दैट इन ऑल द वेज। 7 C's, I'll read it out for you. The 7 C's also known as the 7 principle of communication, which help us to focus our thoughts and ideas for effective communication। मतलब ये 7 C's जो है ये हमारे आइडिया को प्रेजेंट करने में हेल्प करते हैं। These principles serve as a checklist of communication, checklist to communicate more effectively, and are applicable for both verbal as well as non-verbal communication. During verbal face-to-face communication, tone and body language of the communicator also help in conveying the message. However, in written communication, one need to be extra careful due to absence of non-verbal communication. When we are given in writing to somebody, we are not present there. Only our word will communicate our ideas. So जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता होता है कि हम वहाँ नहीं होंगे, इसलिए हम अपने आंसर को किस तरीके से लिखें कि हमारा जो थॉट है, हमारा जो आइडिया है वो पूरे तरीके से कम्युनिकेट हो। तो वहाँ हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है। जबकि वर्बल कम्युनिकेशन में हम वहाँ हैं, हमारी मौजूदगी भी है और हमारे वर्ड्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन 7 C's को ध्यान में रखें और इन पैरामीटर्स पे जो ये C से शुरू होने वाले ये 7 वर्ड्स हैं, अगर हम इनको ध्यान में रखेंगे तो हम अपने लिए एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं कि हम इनमें से कहाँ पर हमारी प्रॉब्लम है, कहाँ पर हम ठीक हैं। तो ये 7 C's जो है ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड। These are, number 1 is clear, that our idea should be clear. This is a self-explaining word, that clear, that हमारा जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए that what we want to say, only then we will be able to make others understand. I'll read it out from the book. The message can be conveyed effectively if the sender has clarity in his thoughts. अगर उसके अपने आइडियाज़ में क्लैरिटी है तो मैसेज कन्वे अच्छे से कर पाएगा। द मैसेज शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय द रिसीवर। दिस विल हैपन व्हेन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज क्लियर। व्हाई वी आर कम्युनिकेटिंग टू अदर्स, ऐसे ही नहीं बोले जा रहे हैं। व्हाई वी आर कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, वी शुड बी क्लियर अबाउट इट ऑल्सो। द मैसेज शुड हैव अ सिंगल गोल एंड नॉट अ मिक्सचर ऑफ आइडियाज़। एक आइडिया होता है, उस एक आइडिया को सपोर्ट करने के लिए हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि वो हर दिशा में बात हो रही है और वो आइडिया एक भी क्लियर नहीं हो पा रहा। सेकेंड इज कंसाइज। कंसाइज मीन्स टू द पॉइंट। एक वर्ड में अगर बोलें तो कंसाइज मीन्स टू द पॉइंट, समराइज, नॉट इन डिटेल कि हम एक ही चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। द मैसेज मस्ट बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज शुड बी यूज टू मेंटेन द रिसीवर्स अटेंशन। अगर आप ध्यान दें, कई बार हम बात करते हैं कि इससे वो मुंह इधर उधर करने लग जाएगा, सिर इधर उधर करके हाँ या ना में जवाब देगा, तो इसका मतलब ये है कि वो अटेंशन नहीं दे रहा है हमारी बात को। एवरी वर्ड यूज्ड शुड बी मीनिंगफुल एंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर। हमें ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को जो बात हम कर रहे हैं वर्ड भी समझ में आ रहे हैं और वो रिसीवर जो है वो सुनने वाला है वो उसे ध्यान से सुन भी रहा है। कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब होता है फैक्टफुल, कंक्रीट का मतलब होता है ट्रुथ, कंक्रीट का मतलब होता है जो फैक्चुअल होता है। यानी कि हमारा जो आइडिया है कुछ फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। किसी चीज़ को अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें उसके नीचे उसके पीछे कुछ पॉइंट्स होने चाहिए जिससे हम सामने वाले को कन्विंस भी कर सकें और वो बात हमारी सुनकर उससे एग्री भी हो सके। When you will read these things in your book,
you will understand it very clearly. Correct. Correct is another point, that concrete, then correct. That everything what we are speaking should be correct. Correct language, अब इसमें दो तीन चीजें आती हैं. एक तो था हमारा जो concrete means it should be somewhere, it should be fact based, जिसके पीछे कुछ आंकड़े हों, जिसके पीछे कुछ ऐसी बात हो कि उसको हम सामने वाले को कन्विंस कर सकें. वो लिखते वक्त इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा जाए, क्योंकि जब आप लिख रहे हैं देन वी आर राइटिंग समथिंग, इट शुड बी करेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट. अब जो आता है करेक्टनेस, अब करेक्टनेस किस में है? लैंग्वेज में, ग्रामर में, हर तरीके से वो करेक्ट होना चाहिए. इवन स्पेलिंग्स में, तो स्पेलिंग्स भी अगर आप चेंज करते हैं तो वर्ड का कुछ और वर्ड भी बन जाता है, तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए. While writing, correct spelling and punctuation should be applied. All we know that when we are studying in CBSE English medium school, the facts and figures used should be accurate. Facts, figures जो भी use करते हैं, accurate on the correctness, coherent. Next point is coherent. Coherent means जुड़ाव. जुड़ाव means connectivity. यानी कि जब दो बातें हम कर रहे हैं, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्टेड हो, उनमें आपस में जुड़ाव होना चाहिए. ये नहीं है कि वो एक लाइन से दूसरी लाइन पे जा रहे हैं, वो कहीं और डायरेक्शन में जा रही है, जिससे सुनने वाले का जो है वो फोकस है, वो फोकस डिस्टर्ब हो जाता है और वो हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनता. इसमें एक दो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ. चेक इफ द मैसेज अगेंस्ट लॉजिकली हैज़ अ स्मूथ फ्लो एंड अ प्रॉपर सीक्वेंस. मतलब उसमें एक फ्लो होना चाहिए, और फ्लो तभी होगा जब वो चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी. Check that you have not tried to cover too many points and not developed from the not deviated from the main point. कि हमने ऐसा तो नहीं किया कि हम मेन पॉइंट से डेविएट हो गए, किसी और ही चीज़ के ऊपर चले गए और वो जुड़ाव जो है कनेक्टिविटी खत्म हो गई है. उसके बाद है कंप्लीट. नेक्स्ट पॉइंट इज कंप्लीट. कंप्लीट का मतलब कि जो भी टॉपिक आप बात कर रहे हैं जो है, दैट शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ, वो कंप्लीट होना चाहिए. We must ensure that all relevant information is conveyed through the message. जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो हम कन्वे कर चुके हैं. It should answer all the queries that mind of the receiver to obtain better response and understanding from him. जितनी चीज़ें जो रिसीवर समझना चाहता है उस कॉन्टेक्स्ट में, उस टॉपिक के बारे में, वो सभी उसको कन्वे होनी चाहिए. Usually in formal communication, the sender is also required to convey what action needs to be taken by the receiver as a result of the conversation. अब इसमें क्या होता है कि जब हम कई बार हमें फीडबैक की भी ज़रूरी होता है, कि जब वो एक मैसेज को समझ पाता है कोई, तो उसमें फीडबैक भी ज़रूरी होता है, और वो फीडबैक भी उस कंप्लीशन का ही पार्ट है. और अगर फीडबैक नहीं आता है, दैट मीन्स आवर मैसेज इज नॉट कंप्लीट, मीन्स हमारा कम्युनिकेशन में कहीं गैप है, इसीलिए फीडबैक नहीं है. courteous. Next point is courteous. What it means कि whenever we are talking to anybody, we should use good words. As I'm using sometimes, dear students, please do it. Sir, your students should be using these type of words when we are, especially when we are speaking to somebody, when we are talking face to face, when we are communicating face to face. We should be using these courteous words. We should be using respectful words, so that other take care of us, listen to us. It's not be so harsh or rude words should be there, so that will make your communication very effective. So these are the 7 C's. Message should be clear, to the point, message clear in all aspect, concise, to the point, concrete means fact based, correct means correct in all aspects, in grammar, words and language, etc. Coherent means all sentences should be connected to each other, जुड़े हुए होने चाहिए. Complete means all the things should be completely explained in the communication. Courteous means we should use respectful words for others, even if we are talking to our younger ones. Benefits of it. Now
Dear students, you are in 10th class. You can understand very well that what will be the benefits of these effective communication skills if you will using all these 7 C's in your communication while writing or speaking to somebody. So you can get all these benefits out of your book. I will be sending you the clips, pics of the pages. Otherwise, you are once again I am requesting you to the 10th class students, please purchase these books. This will help you a lot. So here one more request to the students, that when you are completing a chapter, please go through recap. In recap, so many things are told to you in a summarized way that you can understand in a sentence what the writer or what the book is telling you. So thank you very much. In the end of this chapter, assessment is there, as earlier you are doing it from your book. 3 parts are there: multiple choice questions, fill in the blanks, and these are the objective type questions, as you know very well, and answer the following. Even answers of the multiple choice questions and fill in the blanks, these are also given, but I request you that very sincerely you try to solve it yourself with the help of book. Go through the book and try to do it yourself. After doing it, please check where you have been wrong or what was the correct. Means check your standard, check yourself while giving the answer. And next is given answer the following questions, which is solved type. This solved type is given to you to learn it from the book, and it is a guide for you people. ये आपको बताने के लिए है कि how the question will be coming in the board exam. So this will be the pattern. Then this is the way of asking the question. And one part is given answer the following unsolved type. This unsolved type you will be doing in your notebooks. Again and again I am telling you to purchase the book. It will help you a lot. And all these chapters which I am covering over here in employability skills, these are means for your personality development. Earlier so many times in 9th class also I have told you many times, this is help you to develop your personality. So thank you very much. I hope by 6 to 7 p.m. in the evening you will be able to send me the notes of this chapter, effective skill session 4. Please send me the answer of the unsolved type questions only, very well written. Get it from the book. It is available, answers are available, just check it. And writing should be very nice as per the standard of class 10 students. Thank you very much. Have a nice day and do the work, please. Thank you.